اور آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہمارا اور آپ کا حشر امام حسین کے ساتھ میں ہوگا۔ اور امام حسین کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں سنو، حسن وہ ہے، حسین وہ ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں امام حسین کا دامن ہوگا۔ اور امام حسین کون ہے؟ صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا فقر کا دریچہ دل میں باز کرنا چاہیے، اور حسین جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو تین باتیں امام حسین کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ انشاءاللہ امام حسین کی فضیلت پہ میں ایک دو حدیث بھی پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں جس کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے، لیکن ذرا آپ دیکھیں کہ اس نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا ہے۔ توجہ آپ کی دیکھیں، ہندوستان کی ایک بڑی معزز شخصیت ہے جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ توجہ آپ کی، آپ میری بات کو سنیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں دل ہے، پتھر نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ مچلیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، اگر توجہ جو آپ کی میری طرف ہے تو ذرا آپ بیداری کا ثبوت دیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین۔ توجہ ہے آپ کی، دیکھیں کون ہے گاندھی جن کا فوٹو نوٹ پہ ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہندوستان کی آزادی میں بڑا رول رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں دیکھیں انہوں نے امام حسین کے بارے میں کیا کہا۔ توجہ ہے آپ کی، جب انہوں نے ہندوستان انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا اعلان کیا تھا تو ان سے میڈیا نے پوچھا تھا کہ آخر آپ انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، توجہ آپ کی، نہ آپ کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، نہ آپ کے پاس اسلحے ہیں، نہ آپ کے پاس وہ وسائل ہیں، نہ آپ کے پاس فوج ہے، نہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں کہ آپ انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا سکیں۔ انگریزوں کے پاس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، ان کے پاس فوج بھی ہے، ان کے پاس اسلحے بھی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، آخر آپ انگریزوں کو بھگائیں گے کیسے؟ تو توجہ رکھیں آپ، گاندھی جی نے ایک جملہ کہا تھا، آج بھی ان کا جملہ ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا سنو، پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ آخر ان کے خلاف میں لڑوں گا کیسے۔ انہوں نے کہا پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا، لیکن ایک دن میری یہ سوچ تبدیل ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا جب سے میں نے حسین ابن علی کو پڑھا ہے تب سے میرے اندر ہمت آ گئی ہے، تب سے میرے اندر جرأت آ گئی ہے، تب سے میرے اندر طاقت آ گئی ہے۔ پوچھا گیا کیا پڑھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے حسین ابن علی کی زندگی کو نرسن ڈیلا کی کتاب میں پڑھا۔ پوچھا گیا کیا؟ تو گاندھی جی کہتے ہیں سنو، کربلا کے میدان میں ایک طرف 72 تھے، ایک طرف 22,000 تھے، لیکن 72 حسینی 22,000 کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو آج کربلا کا میدان دیکھ لو آپ، 22,000 کا نہ کہیں نام و نشان ملتا ہے، نہ کوئی اتا پتہ ملتا ہے، لیکن ایک طرف 72 تھے، آج بھی 72 کے خیمے کربلا کی سرزمین پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا 22,000 کے خلاف 72 کھڑے ہوئے تھے، تو آج کربلا میں 22,000 کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر ہم انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہندوستان میں کئی انگریزوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اسی کو محمد علی جوہر نے کہا تھا یہ کربلا کا پیغام ہے جس نے ہندوستان کو آزاد کروایا ہے۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ دیکھیں یہ ہے امام حسین۔ کون ہے امام حسین؟ ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں میں، دیکھو امام حسین کی عظمت کیا ہے اور امام حسین کی شان کیا ہے۔ حضور حدیث میں فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ توجہ ہے آپ کی، ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ اللہ کے نبی کو امام حسین کو گود میں اٹھا کر کے یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ حضور دعا کرتے تھے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، توجہ رکھیں، حضور دعا کرتے تھے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور کائنات میں جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو اس سے سبحان اللہ۔ دیکھیں حسین کون ہے، ایک مثال سے آپ سمجھ لیں حسین کون ہے۔
इमाम हुसैन की अजमत को एक मिसाल में आपके सामने दे दूं, समझ जाएंगे। तवज्जो आपकी देखिए, ऊंट की चर्बी से अगर उसकी खाल से कोई चप्पल बना ली जाए, तवज्जो आपकी, बड़ी कीमती बात मैं कर रहा हूँ, आपकी समातों को हाथ में रखें आप। अगर उससे कोई चप्पल बना ली जाए और वो चंद सेकंड के लिए अल्लाह के नबी के कदमों में आ जाए, तो हम उसे चप्पल या जूता नहीं कहते हैं, अपनी जबान से हम उसे नाले पाक कहते हैं। और ये कहते हैं सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो हाँ कहेंगे ताजदार हम भी हैं। जरा तवज्जो करें, अगर ऊंट की चर्बी, ऊंट की खाल से बनने वाली एक चप्पल को अल्लाह के नबी ये शरफ बख्श दे कि चंद सेकंड के लिए उसे अपने कदमों में डाल दे, तो हम ये कहते हैं कि उसे हम अपने सर पे रख लेंगे। जरा आप तवज्जो करें, जब आज का मुसलमान हो या आज से पहले का मुसलमान हो या क़यामत तक आने वाला मुसलमान हो, अगर हुजूर के साथ से कोई चीज मंसूब हो जाए तो उसे सर पे रखने के लिए तैयार है, तो इमाम हुसैन तो उस साथ का नाम है जिसे अल्लाह के नबी अपने कांधे पे उठाया करते। लेकिन क्या शान है इमाम हुसैन की? हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सहाबा रिवायत करते हैं और सहाबा फरमाते हैं, हमने कई मरतबे हुजूर को ये देखा कि अल्लाह के नबी जब भी हुसैन से प्यार करते थे तो हुसैन को चूमते भी थे और हुसैन को सूंघते भी थे। जरा आप तवज्जो करें, मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर से, मुहद्दिसीन जिसको रिवायत करते हैं, सहाबा रिवायत करते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह के नबी से पूछा गया, हुजूर आप इमाम हुसैन को चूमते भी हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन सूंघते हैं ये बात समझ में नहीं आती है। तो हुजूर ने फरमाया, सुनो, हुसैन वो है जिससे मुझे जन्नत की खुशबू आती है। और हुजूर फरमाते, हुसैन जन्नती फूलों में से एक फूल है जिसे अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। जरा आप तवज्जो करें और मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर कोई फूल आपके यहाँ झाला जोराहन पुरवा में खिले, सुबह में खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। कोई फूल बहराइच शरीफ में खिले, सुबह में खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। कोई फूल हिंदुस्तान के किसी हिस्से में खिले, सुबह में खिलता है, शाम में मुरझा जाता है। कोई फूल पूरी दुनिया में खिले, उसकी बात ये होगी, उसकी शान ये होगी कि सुबह को खिलेगा, शाम में मुरझा जाएगा। लेकिन आप देखें इमाम हुसैन कैसे फूल हैं, जो मदीने में है तब भी खिले हुए हैं, जो मक्के में है तब भी खिले हुए हैं, जो करबला में है तब भी खिले हुए हैं। इसलिए शायर ने कहा था, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे। शहादत तो आप मेरे बात सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके सामने इमाम हुसैन की विलादत पढ़ूं। सुनेंगे आप? इमाम हुसैन की विलादत कब हुई है, कैसे सुन ले आप, ताकि मेरे बाद आने वाला खतीब शहादत बयान कर दे तो आप इब्तिदा भी सुन लें और इंतहा भी सुन लें। तवज्जो आपकी। देखो इमाम हुसैन की विलादत कहाँ हुई है, अगर आप में से कोई जानता है तो बोल के जरा मुझे बताए, कहाँ हुई है इमाम हुसैन की विलादत, जरा बताएं। यही तो अफसोस है, अभी खड़ा करके पूछा जाए, बताओ विराट कोहली ने किन फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है तो गिनाते हुए नजर आओगे। पूछ लिया जाए, बताओ आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है तो गिनाते हुए नजर आओगे। अगर पूछ लिया जाए, बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है तो गिनाते हुए नजर आओगे। लेकिन पूछ लिया जाए, बताओ इमाम हुसैन मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं तो खामोशी का मुजाहरा करोगे। अगर पूछ लिया जाए, बताओ इमाम हुसैन ने कितने दिन मक्के में गुजारे हैं, कितने दिन मदीने में गुजारे हैं, कितने दिन करबला में गुजारे हैं तो खामोशी का मुजाहरा करोगे। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुछ शिकन उड़ गए बाकी जो बचे खुदगर हैं, उम्मती पाई से रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ है जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुल। कहाँ पैदा हुआ इमाम हुसैन, सुन ले आप। शहादत तो आप जानते हैं करबला की शहीद तो कहाँ पैदा हुआ इमाम हुसैन, मदीने में। कहाँ? मदीने में पैदा हुए हैं। जरा आप तवज्जो रखें, कब पैदा हुए हैं? 5 शाबानुल मुअज़्ज़म है, 4 हिजरी है। इमाम हुसैन पैदा हुए हैं किसके घर में? हजरत अली के घर में, हजरत फातिमा ज़हरा के घर में। जरा तवज्जो रखें, शान देखें। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई है, उठा के देखें आप तारीख की किताबों को, उठा के पढ़ें आप मौरख़ीन को, उठा के पढ़ें आप इमाम हुसैन की जिंदगी को, तो मौरख़ीन लिखते सुने आप उसको, बड़े बड़े मौरख़ीन ने लिखा है, बड़े बड़े मुस्तनद मौरख़ीन ने बयान किया है। जरा आप तवज्जो
रखें इमाम हुसैन की विलादत को। जब आप मदीने में पैदा हुए हैं, और फरमाते हैं एक रिवायत में 4 लाख, एक रिवायत में 12 लाख लिखा गया है कि 12 लाख फरिश्ते आसमान से जमीन दुनिया की तरफ इमाम हुसैन की विलादत पर अल्लाह के नबी को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। इमाम हुसैन की विलादत पर हजरत अली को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और नबी फरमाते हैं जब हजरत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका जमीन की तरफ चले हैं इमाम हुसैन की विलादत पर हुजूर को मुबारकबाद देने के लिए, आपके साथ में 12 लाख फरिश्तों की फौज थी। और नबी फरमाते हैं जब आप चले हैं आसमान से, और जब आप चौथे आसमान पर पहुंचे हैं, तो आपने देखा एक फरिश्ता है जिसका नाम मौलवी ने फिदरस, जब आप मौलवी ने फिदरस बयान किया है, उसके बारे में बयान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बड़ी शान और शौकत से नवाजा था। लेकिन एक मरतबे उसने आसमान से जमीन की तरफ देखा, उसने देखा कि एक इंसान है जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसके दोनों पैर नहीं है। उस फरिश्ते ने उस इंसान को देख के दिल में सोचा कि इसे भी दुनिया में जीने का हक है, इसे भी जिंदा रहने का हक है। जब उस फरिश्ते ने अपने दिल में ये सोचा कि बात अल्लाह को इतनी नागवार गुजरी, अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते सुन, तो तुझे भी मैंने पैदा किया है और उस बंदे को भी मैंने पैदा किया है, उसका खालिक भी मैं हूँ, तेरा खालिक भी मैं हूँ। तुझे भी मैंने एक मकसद के तहत पैदा किया है, उसे भी मैंने एक मकसद के तहत पैदा किया है, लेकिन तूने उसे हिकारत की नजर से देखा है, इसीलिए आज से तेरे बाल और पर को जब्त किया जाता है, तुझे तेरी ड्यूटी से माजूल किया जाता है। और फरमाते हैं उसे उसकी ड्यूटी से भी माजूल कर दिया गया, उसके बालों पर को भी जब्त कर लिया गया। जब हजरत जिब्रील अमीन चले हैं, उस फरिश्ते को पता चला है, सुने इमाम हुसैन की शान क्या है। देखें आप, उस फरिश्ते ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा है कि कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हैं आप। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं सुनो, आज अल्लाह के नबी के घर में नवासे की विलादत हुई है, हम उनकी विलादत पर अल्लाह के नबी को और हजरत अली को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तो उस फरिश्ते ने कहा अगर आप अल्लाह से इजाजत दे लें, मुझे भी इजाजत मिल जाए, मैं भी जाके हुसैन की विलादत पर उनके बाबा को, उनके नाना को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और फरमाते हैं हजरत जिब्रील अमीन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से इजाजत दी है, उस फरिश्ते को अपने साथ में लेके आए हैं। बारी बारी तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के नबी को इमाम हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद दी है। तवज्जो रखें, जब सबने मुबारकबाद दे दी, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी ये एक फरिश्ता है जिसका नाम फिदरस है, इससे एक गलती सरजद हुई है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने इसे इसकी ड्यूटी से माजूल कर दिया है, इसके बाद और पर को छीन लिया है। ये भी हुसैन की विलादत पर आपको मुबारकबाद देने आया है, आपके नवासे की विलादत पर आपको मुबारकबाद देने आया है। जब उस फरिश्ते ने अल्लाह के नबी को मुबारकबाद दी है, और नबी फरमाते हैं इमाम हुसैन को जिस कपड़े में लिटाया गया था, जिस कपड़े पे लिटाया गया था, अल्लाह के नबी ने उस कपड़े का एक कोना उस फरिश्ते के जिस्म पे टच कर दिया है। ये कपड़े की बरकतें थी कि अल्लाह ने उसके बालों पर को वापस कर दिया है, अल्लाह ने उसकी जो गलती सरजद हुई थी अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, दरगुदर कर दिया है। जब उस फरिश्ते ने देखा है कि अल्लाह की बारगाह में मुझे माफी मिल गई है, मेरे बाल और पर को भी वापस कर दिया गया है, मेरी ड्यूटी पर मुझे फिर से मुकर्रर किया जा रहा है, तो उस फरिश्ते ने कहा अल्लाह के नबी आपके नवासे की विलादत का सदका है कि अल्लाह ने जो मुझसे गलती सरजद हुई थी अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, मेरे बालों पर को भी वापस कर दिया है। अल्लाह के नबी आज से मैं आपकी बारगाह में ये इंतजार करता हूँ कि आप अल्लाह से दुआ कर दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इस काम पे मुकर्रर कर दे कि आज से लेकर क़यामत तक मैं हुसैन के साथ रहूं और हुसैन के साथ में खातिम बन के किसी शान है, इमाम हुसैन की शान है। तवज्जो रखें, बस मैं चाहता हूँ आप पैगाम करबला को समझें। तवज्जो है आपकी। देखिए करबला क्या है, करबला के मैदान में एक जंग हुई है। तवज्जो है आपकी। जंग किसके दरमियान हुई है? इमाम हुसैन और यजीद वलीद के दरमियान। आप जानते हैं यजीद कौन है? आओ जरा एक सेकंड के अंदर मैं यजीद का नक्शा भी आपके सामने बयान कर दूं ताकि आप समझ जाएं कहाँ यजीद और कहाँ इमाम हुसैन। देखें यजीद के बारे में मौलवी फरमाते हैं कि यजीद का जिस्म बड़ा मोटा पतला सुर्ख कलर का था और इसके जिस्म पे सूअर के मानिंद बाल थे। तवज्जो करें ये यजीद है। और इमाम हुसैन के हुस्न के बारे में इमाम बुखारी फरमाते हैं, लोगों सुनो, इमाम बुखारी लिखते हैं अल्लाह के नबी की सूरत के मुताबिक कायनात में अगर किसी की सूरत थी तो वो इमाम हुसैन है। यजीद कौन है? यजीद वो है जिसने खाना काबा पे पत्थर बरसवाए। खाना काबा पे यजीद